یہ تو انکی خود اپنی اطراف شکست ہے نا. عمران پہ روز ایک مقدمہ ٹھوک دیتے ہو, روز ایک مقدمہ ٹھوک دیتے ہو تم. وہ کہتے ہیں نا دوجے دا منہ لال ہوندا ہوئے تے اپنا منہ چپیڑا نہ لال نہیں کریدا. یہ الٹا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ساڈے تے پرچے تے ہوئے نے, ساڈے تے چوریاں ڈکیتیاں تے ہوئے نے, اس کے اوپر بھی کوئی پرچے ڈالیں تاکہ ہمارا بیلنس برابر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت, جتنی میں نے اپنی زندگی میں انہیں گالیاں پڑھتے دیکھی میں نے کسی حکمران کو نہیں پڑھتے دیکھی. مریم نواز تو یہ کہتی ہیں کہ اب جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو میں بہت ناراض ہوں, میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. اتنی ناراض ہیں, کہہ دیں شہباز شریف سے کہ استعفیٰ دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ چمڑے نے اودے نال جفا پائے ہیں انہوں کہ میں کسی طرح اقتدار اسی نہ چڑھیے. دنیا میں سب سے مختصر حکومت جو ہے نا وہ شہباز حکومت کی ہے, 37 کلومیٹر کی. اتنی طویل بیماری کی اداکاری تو شاہ رخ خان نے دیوداس فلم میں نہیں کی, جتنی اداکاری کی طویل بیماری نواز شریف نے پاکستان میں کر دی. شہباز شریف ایک جعلی اسٹامپ 50 روپے کا دے کے پاکستان کے سب سے بڑے مجرم کو, جسے سپریم کورٹ نے مجرم قرار دیا, ملک سے باہر فرار کرا دیتا ہے اور وہ ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. کیسا ملک ہے؟ السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان انس مدر. ناظرین, پاکستان کے اندر جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں سیاست کے اوپر, عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. کارکن جو ہیں وہ باہر بھی نکلے ہیں. شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی جس کے بعد ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں. تو اس سارے سینیریو کے بعد اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی سارا صاحب کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, اس کے اوپر رائے لیتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو کیا ہو گیا یار, اس میں اگر وہ گرفتار ہو جائے گا تو کیا ہو گیا؟ گرفتار ہونے سے کیا پھائے لگ جائے گا؟ وہ بھائی لیڈر ہی گرفتار ہوتے ہیں, بندے ہی جیلوں میں جاتے ہیں, تو یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ اگر عمران خان گرفتار ہو جائے گا تو سو واٹ یار, اس کی پاپولیرٹی اور عوامی شہرت آسمان تک پہنچ چکی ہے. تو ان گرفتاریوں سے اس کو کیا, یہ تو ان کی خود اپنی احساس شکست اور اعتراف شکست ہے نا, کہ عمران پہ روز ایک مقدمہ ٹھوک دیتے ہو, روز ایک مقدمہ ٹھوک دیتے ہو تم. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا دوجے دا منہ لال ہوئے تے اپنا منہ چپیڑا نہ لال نہیں کریدا. یہ الٹا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ساڈے تے پرچے تے ہوئے نے, ساڈے تے چوریاں ڈکیتیاں تے ہوئے نے, اس کے اوپر بھی کوئی پرچے ڈالیں تاکہ ہمارا بیلنس برابر ہو جائے. اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ عمران خان کے اوپر 10,000 پرچے کر لو, وہ دبے گا نہیں, وہ ان دباؤ میں نہیں آئے گا. اگر گرفتاری ہوتی ہے تو کارکن باہر نکلیں گے نہیں, کیا آپ کو لگتا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان تو کال نہیں کر دیتا, کارکن خود ہی باہر آ جاتے ہیں. جس دن انہوں نے پلان کیا تھا بنی گالہ میں عمران خان کو گرفتار کرنے کا, ساری رات کارکن وہاں پہ موجود ہے, فٹ پاتھوں پہ لوگ سوئے ہوئے تھے اور بنی گالہ کو چاروں طرف سے انہوں نے گھیر رکھا تھا. تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عوام اور کارکن اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے ساری رات جاگتے ہیں اس کے گھر باہر بیٹھ کے. اب یہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں, بونگی مارتے ہیں, تو ان کو تیار رہنا چاہیے کہ ان کو پھر رد عمل بہت سخت آ سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو کیسز ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہوں جو عمران کو دبانا چاہ رہے ہیں, کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو یہ حکمران ہیں ان کو تو موقع مل گیا نا اپنے اندر کی ریجے لانے کا, اور ان کو تو موقع مل گیا نا کہ عمران خان کو اپنی جو ان کی واریاں لگی انہیں گھسیٹا گیا. ٹھیک ہے نا, وہ تکلیفیں تو نہیں یہ بھولے. اب یہ اس کا بدلہ لینے کے چکر میں اب عمران پہ ایک اور مقدمہ آج تک درج کر لیا انہوں نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے زیادہ غیر مقبول حکومت, ٹھیک ہے, جتنی میں نے اپنی زندگی میں انہیں گالیاں پڑھتے دیکھے میں نے کسی حکمران کو نہیں پڑھتے دیکھی. آپ اندازہ کریں ان کی بدماشی کا کہ انہوں نے جو بجلی کے بل ہیں, جو بل انہوں نے بھیجے ہیں, اس سے آپ دیکھیے گا خودکشیاں بڑھیں گی لوگوں کے. لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی بجلی کاٹ دیں گے. 6,000 روپے بل ہے اور 11,000 روپے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس رکھا ہوا ہے. ایک غریب آدمی جس کے گھر کا بل 10,000 آیا, اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس ڈال کے 30-35,000 روپے تک لے کے. انہیں خوف خدا نہیں ہے, انہیں کوئی شرم نہیں ہے کہ یار یہ غریب زندہ کیسے رہیں گے. ایک طرف تم نے آٹا مہنگا, گھی مہنگا, چینی مہنگی, دالیں مہنگی, ٹھیک ہے, پٹرول اوپر آسمانوں کے اوپر گیا, اوپر سے تم نے بجلی کا ان کو کرنٹ لگا دیا. تم ان چاہتے ہو کہ یہ زندہ نہ رہیں کسی طرح سے. مریم نواز تو یہ کہتی ہیں کہ اب جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو میں بہت ناراض ہوں, میاں صاحب میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا, تو اگر اتنی ناراض ہیں
तो कह दें शहबाज शरीफ से कि इस्तीफ़ा दे दें, ठीक है ना, क्यों नहीं देते? चिमड़े ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है ना, जफ्फा पाए है ਉਹਨੂੰ कि मैं किसी तरह इक़्तिदार ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। मियाँ साहब अगर मीटिंग छोड़ के चले गए थे तो शहबाज शरीफ दे देते रिज़ाइन, कह देते कि भाई मैं नहीं कर सकता, किसी और से करवाएं। क्यों चिपके में? इसलिए कि इनके जो इन्होंने लूटी हुई दौलत है उसको भी तो सेव करना है, नैब को भी तो कमज़ोर करना है, अपने ऊपर होने वाले मुकदमात को भी तो ख़त्म करवाना है, ठीक है, जो इनके गले के फंदे हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो मुमकिन है कि हो सकती है? यार अगर इस मुल्क के अंदर जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे को फांसी हो सकती है वज़ीर आज़म को, तो क्या नहीं हो सकता इस मुल्क में? अगर मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भरे बाज़ार के अंदर जलसे में उनको गोली मारी जा सकती है और उनके आज तक कातिल भी नहीं पकड़े गए, तो क्या नहीं हो सकता इस मुल्क में? बिलावल भुट्टो, मुझे तो उस पर तरस आता है, काका मुन्ना जो है, ठीक है, वो कहता है जी कि इमरान खान हुकूमत इंसाफ नहीं कर रही। और तुम तो अपनी माँ के कातिल नहीं पकड़ सके, 5 साल हुक्मरान रहे हो तुम तो अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिलों को नहीं पकड़ सके 5 साल हुकूमत में रह के। क्यों नहीं तुम लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों को सामने लेके आए? क्यों नहीं तुमने ट्रायल किया? अब तुम बातें करते हो कि जनाब अली मोहतरम भुट्टो को इंसाफ अदालतें कब देंगी और जुल्फ़कार अली भुट्टो को अदालतें इंसाफ कब देंगी? 5 साल थे तो दिलवा देते ना इंसाफ, तब तो तुमने कुछ नहीं किया, आज तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है। सर ये बताएं कि जिस तरीके से सहाफ़ियों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और जिस तरीके से उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस मुल्क के अंदर अपने बंदों से मुकाबला किया जा रहा है और अपने बंदों की मार के जो है खुशियाँ मनाई जा रही हैं? देखिए सहाफ़ियों पे तो जब से पाकिस्तान बना और सहाफ़त में मीडिया मैदान में है तब से इसी तरह ही हो रहा है। ये तो वो सहाफ़ी हैं जिनकी एक्सेस जो है वो टीवी तक है, तो वो सहाफ़ी जो जिनको हज़ारों की तादाद में निकाला गया और वो भूखे मरे, ख़ुदकशियाँ की, उनके घर के चूल्हे बुझ गए, और वो सहाफ़ी जिनकी सैलरियों में कट लगा के आधी सैलरियाँ कर दी गई, ठीक है, और आज तक बहाल नहीं हुई, उनकी तो कोई बात नहीं करता। ये 2-3 सहाफ़ी अगर इनको पकड़ लिया तो पूरे पाकिस्तान में क़यामत मच गई, और वो जो सैकड़ों सहाफ़ी खामोशी से मर गए उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सर ये बताएंगे शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से दिन रात जो है वो टॉक शोज़ हो रहे हैं, उसके ऊपर बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको बहुत शद्दत हुआ है, तो ये लगता है कि ज़मानत हो जाएगी उनकी? भाई आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों हो जाएगी, ज़मानत तो होनी। उन्हें केड़ा कत्ल करता है यार कोई, उन्हें केड़े बंदे मारते हैं? इधर तो मॉडल टाउन के अंदर सीधी गोलियां मारने वाले लोग जो हैं वज़ीर आज़म बन जाते हैं, वज़ीर दाखिला बन जाते हैं, तो क्या उसने मॉडल टाउन से भी बड़ा क्राइम कर दिया है? हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, तनकीद करते हुए जज्बातियत में उन बातों को नहीं छेड़ना चाहिए जो मुल्की मुफाद के थोड़ा सा खिलाफ जाते हों, वहाँ एहतियात करनी। सर ये लोग कौन कर रहा है ये सब गिरफ्तारियाँ? देखें मैं कहता हूँ कोई भी कर रहा है, सपोज़ आपका जिनकी तरफ इशारा है कि इदारों में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कर रही है सारा कुछ, तो ओन तो शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है ना, पर्चा तो इनकी हुकूमत में इनकी इस्लामाबाद पुलिस करती है ना, तफ्तीश तो इस्लामाबाद पुलिस करती है ना, जेलों में तो इस्लामाबाद पुलिस डालती है ना। किसी का भी नाम ले दें जी वो कर रहे हैं, लेकिन कर तो ये रहे हैं ऑन ग्राउंड, जिम्मेदार तो ये लोग हैं। अच्छा, इमरान खान साहब जब से निकाले गए हैं तब से उनकी जो मकबूलियत है वो बढ़ चुकी है, और इलेक्शन जब भी हो रहे हैं ज़िमनी तो खान साहब जो हैं वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस वजह से जो मौजूदा हुकूमत है वो भाग रही इलेक्शन से? देखें मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत की तो औकात ही कोई नहीं है। इन्हां दी ते 37 किलोमीटर दी हुकूमत है, दुनिया में सबसे मुख्तसर हुकूमत जो है ना वो शहबाज हुकूमत की है 37 किलोमीटर की। और लेकिन असल चीज़ ये कि जो लोग इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि अवाम क्या कह रही है और वो क्या कह रहे हैं। सर ये बताएं कि लोग ये सवाल करते हैं खान साहब ने 3.5 साल के अंदर क्या कर लिया है, इनका और नून लीग में फ़र्क क्या वाज़ह नज़र क्या आता है? खान साहब ने 3.5 सालों में ये महंगाई 2000% ऊपर लेके गए। खान साहब ने 3 साल इस महंगाई को काबू रखा कोविड के बावजूद। खान साहब ने इसी
पैसों के अंदर एहसास प्रोग्राम चलाया, वो शेल्टर होम चलाए जो रात में जहाँ लोग ठहरते हैं, ठीक है, कफ़ालत प्रोग्राम चलाया, फिर खाना रात को जो वो देते, कहते हैं हमने मोटरवे बना दी, हमने मेट्रो बना दी, हमने सड़कें बना दी। और इसी में पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि क्या दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ कि हर शहरी को 10 लाख तक की इलाज की सहूलत खान साहब ने दी, जो दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है, ठीक है। अब आ जाएं ये मोटरवे की तरफ और पुलों की तरफ। बड़ा ज़ोर था, बड़ा ही शोर था, शहबाज शरीफ से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं। ओ शहबाज शरीफ रात को सोता नहीं, ओ शहबाज शरीफ किथे वे, ओ शहबाज शरीफ आनियाँ जानियाँ, मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता। ओ भाई, लोगों को फोके डायलॉग सुना रहे हो तुम। मैं अपने कपड़े बेच के मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक बिजली के बिलों का मसला हल नहीं होता। ओ तुमने चैन से क्या बैठना, तुमने तो आवाम को बेचैन कर दिया, उन बेचारों को नींद नहीं आती। तुम तो रात को लग्जरीस बेड पे बेहतरीन माहौल में जाके सो जाते हो। ये पुल बनाने, ये सारा कुछ जो है, इसकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो शहबाज शरीफ एक्सपोज हो गया वज़ीर आज़म बन के, कि पुल चलाना और सड़क चलाना और मुल्क चलाने में बड़ा फ़र्क है भाईजान। आप चिंची चलाने वाले को कहो कि जो ले बैठ के तो हेलीकॉप्टर चला ले, तो फिर वो यही होगा जो इस मुल्क का हाल हो रहा है। नवाज शरीफ साहब कभी पता लगता है कि वापस आ रहे हैं और कभी ये इतला आती है कि वो नहीं आ रहे। देखें, जब ऐसा लगता है ना कि इमरान खान गया तो उनके डॉक्टर कहते हैं तगड़े हो जाओ जी, जाना है। और जैसे ही अगली सुबह इमरान खान तगड़ा बयान देता है तो डॉक्टर कहते हैं जी तुसी बीमार हो, तुसी घर ही बैठो, ठीक है ना। तो उनकी बीमारी, मैं तो उन्हें कहता हूँ उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए अदाकारी का। इतनी तवील बीमारी की अदाकारी तो शाहरुख खान ने देवदास फिल्म में नहीं की, जितनी अदाकारी की तवील बीमारी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कर दी, ठीक है। और वो तभी बीमारी के भी ज़िम्मेदार जो लोग हैं जिन्होंने इस बीमारी का बहाना बना के उसको मुल्क से बाहर भेजा। तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क का इंसाफ, इस मुल्क का कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट मुजरिम करार देती है? इस मुल्क के अंदर किसी गरीब को, किसी बेबस को, किसी मजबूर को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस मुल्क के अंदर सिर्फ ताकतवरों को, तगड़ों को, वडरेरों को, चौधरियों को, डाडों को ही इंसाफ के नाम पे आसानियाँ मिलेंगी। मरियम नवाज़ अदालतों से सज़ा याफ्ता है, ठीक है, और वो ज़मानत पे बाहर है। शहबाज शरीफ एक जाली स्टाम्प 50 रुपये का दे के पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम करार दिया, मुल्क से बाहर फरार करा देता है और वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाता है। राना सनाउल्लाह जिस पे मॉडल टाउन के 16 बंदों के शहादतों का केस है, वो वज़ीर दाखिला बन जाता है, ठीक है। तो ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर जो जितना बड़ा बदमाश है उतना बड़ा ओहदेदार है? तो इस मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ गरीब अवाम का क्या कसूर है भाई? उनके आबाओ अजदाद का क्या कसूर है कि उन्होंने एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत, जिसमें तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों को बराबर के यकसा मौके मिले आगे बढ़ने के का ख्वाब देखा था। आज हस्पतालों के अंदर हमारी माएँ बहनें, इलाज तो दूर की बात है, उनको बेड नहीं मिलता, वो बरामदों के अंदर नीचे पड़ी होती हैं। उनके साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा था उन हॉस्पिटल के अंदर। सर, लगता है कि खान साहब किसी भी पॉइंट पे आके डील करेंगे? खान साहब ने माजी में भी तो डीलिंग की है। खान साहब ने माजी में डील करके ही तो हुकूमत ली थी, डील करके ही तो ये इर्द गिर्द जो उनके गिर्द आके लोग बैठे थे, ये डील का ही नतीजा थे तो बैठे थे। तो खान साहब अब भी डील कर लेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खां को जब भी मौका मिला रगड़ा लगाएगा, वो रगड़ा लगाएगा, और ऐसा रगड़ा लगाएगा कि उसने जो कहा था कि मैं तुम्हें रुलाऊंगा, उसने रुला दिया। उसने सब इतना कहा था मैं तुम्हें रुलाऊंगा, उसने इनकी चीखें भी निकलवा दी, ठीक है ना। लेकिन ये कि अगर उसे कभी भी मौका मिल गया तो वो सबको उड़ा के रख देगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इसार राना साहब की। मज़ीद जो है वो इंटरव्यू हम करेंगे और जो इनकी तज्ज़िया है वो आपको दिखाएंगे, ताकि आप देख सकें कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से जो है लोगों के हक़ जो हैं वो खाए जा रहे हैं। और खान साहब अब गिरफ़्तार होते हैं या नहीं होते हैं, ये मुस्तक़बिल में फ़ैसला होगा। अब ये देखना है कि इस मुल्क के लिए कौन सोचता है।